Hello, students. We have already started the second chapter of Panorama book, The Portrait of a Lady. In our previous three videos, we have already discussed about the lady whose portrait the writer had drawn with beautifully chosen words. We have come to know about the lady who was the lady. She was none but the writer's or author's grandmother. How did she look? We have come to know about her physical appearance and also about the appearance of grandfather, the picture of the grandfather rather, because he was no more with them. And we have also come across the picture of the early childhood and the village life of the author with his grandmother. हमने देखा है कि कैसे उन लोगों ने हाउ दे वेंट टू स्कूल टुगेदर, how the grandmother used to get the author dressed the author for school, how did she try to put the values put her values into द ऑथर्स माइंड. जैसे वो खुद दिन भर प्रेयर करती थी, जैसे वो खुद दिन भर माला जपती थी, वही प्रेयर, वही रिलीजियस थिंकिंग, वही सोच ऑथर चाहती थी, ग्रैंड मदर चाहती थी कि ऑथर के अंदर भी आए. इसलिए वो हर दिन ड्रेसअप करवाते करवाते ऑथर को अलग प्रेयर सॉन्ग सुनाती थी. And then how they went to school, how the author used to study, and how the author used to study, and how they used to and how at that time grandmother used to study scriptures over at the same place at the temple area, and how they used to come back. So it's we have come across a clear picture of village school and a sort of village life of the early childhood of the author with grandmother. जब उस गांव में उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के गए थे दादी माँ के पास. Now today we are going to read the portion where we will study about their life in city when they shifted from village life to city life. Let's start reading. We'll start from here today. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Now, this is a very important line that was a turning point in our friendship. Question comes often that what was the turning point, or how was the turning point? How was the turning point? How was the turning point? The answer will be although, from although to house. What was the turning point, or rather it comes as what was the turning point of their friendship, in their friendship. So this is the answer, the bracketed portion, although, from although to house. अब देखो, जब उनके पेरेंट्स थोड़े से सिटी में सेटल्ड हो गए, थोड़े से सही तरीके से वो रहने लगे, थोड़े से कंफर्टेबली, तब उन दोनों को भी उन्होंने साथ में अपने साथ लेकर आए.
दैट वाज, और उसी टाइम उनकी दोस्ती का मतलब विलेज लाइफ में जो सिंपल उनके दोनों के बीच में एक अलग सी दोस्ती थी। हर दिन दादी माँ भी उनके साथ विलेज स्कूल जाती थी। वो जो फ्रेंडशिप अलग से था वो कहीं ना कहीं पे एक नया मोड़ ले लिया। टर्निंग पॉइंट मीन्स मोड़, मोड़ ले लिया। हो सकता था कि तब भी वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, मतलब ऑथर और ग्रैंड मदर, लेकिन ग्रैंड मदर उसके साथ उनके साथ तब स्कूल नहीं जाती थी। जैसे पहले हाथ पकड़ के स्कूल ले जाती थी, लेकिन शहर में आने के बाद दादी माँ उनको स्कूल नहीं ले जाती थी, क्योंकि उस टाइम वो छोटे से गांव के विलेज, मतलब जो मंदिर के पास वाला जो गांव का स्कूल है उसमें वो नहीं पढ़ते थे। वो एक बड़े से स्कूल में पढ़ते थे, और जहाँ पे एक बस आती थी उनको लेने के लिए। सो और वो इंग्लिश स्कूल था, वो छोटा सा वो गांव का स्कूल भी नहीं था जहाँ पे हिंदी अल्फ़ाबेट सिखाया जाता था। सो अब शहर का हवा आ गया है सभी के बीच में, तो चेंजेस तो आएगा ही। सो मोटर बस में अब वो जाते थे और एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, तो इसीलिए दादी माँ भले ही उनका रूम शेयर करे, लेकिन ये सब स्कूल ले जाना ले आना ये सब ख़त्म हो गया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और बस में जाने से ना तो उनके पीछे पीछे कोई डॉग्स आता था रास्ते में, ना तो कोई नहीं आता था। तो जैसे डॉग्स नहीं आता था, लेकिन दादी माँ ने, जैसे मैंने फर्स्ट डे पे बताया था कि दादी माँ यहाँ पे जो ऑथर के ग्रैंड मदर है, शी नोज़ हाउ टू हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। एडेप्टेशन आप सब ने साइंस में पढ़ा है। व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मतलब अपने आप को चारों तरफ के सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेना। तो ग्रैंड मदर न्यू इट वेरी वेल, इसीलिए उनको पता था कि जैसे गांव में चलते चलते रास्ते में डॉग्स वगैरह मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलने वाला है शहर में। तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और उन्होंने क्या किया, उनके घर के जो कोर्टयार्ड है, जो सामने की जगह है, वहाँ पे छोटे छोटे स्पैरोज को ही खाना खिलाती थी, क्योंकि वो अभी घर से इतना बाहर भी नहीं निकलते थे। तो वही सिटी हाउस, शहर के घर के जो बाहर का इलाका है, वहाँ पे वो स्पैरोज़ को, अब स्पैरोज़ यानी छोटी छोटी चिड़िया, उनको खाना खिलाती थी। इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, यू ऑल नो। तो अब यहाँ पे दादी माँ ये बैठ के दुखी नहीं हो गई कि हम तो अब कुछ नहीं निकल पाते हैं, डॉग्स वॉग्स भी नहीं रहता है, ऐसा नहीं। शी नो हाउ टू एडजस्ट, शी न्यू हाउ टू एडजस्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डॉग्स नहीं तो स्पैरोज को खिलाएंगे। सो दिस इज़ द क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रैंड मदर, अडेप्टेबिलिटी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जैसे जैसे सालों बीतता गया, मतलब बहुत सारे ईयर्स बीतते गए, तो वैसे वैसे ऑथर और दादी माँ का एक दूसरे से मुलाकात कम होता गया। सही बात है, क्योंकि ऑथर बड़े हो रहे हैं, उनके अलग से फ्रेंड सर्कल, अलग से पढ़ाई एक्सेट्रा में वो ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे थे। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि उन दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग थी, वो थोड़ा सा, बॉन्डिंग अभी ढीली नहीं होती, लेकिन वो टाइम स्पेंडिंग थोड़ा सा कम हो जाता है कभी कभी। लेकिन देखो, फॉर सम टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी कर देती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, तब मुझे वो पूछती थी कि आज टीचर ने हमको क्या सिखाया। मतलब ऐसा नहीं, आप देखो कि दादी माँ कभी भी
सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट अ सेंटिमेंटल लेडी। वो इन चीज़ों को कभी भी सेंटिमेंटली इमोशनल वे में नहीं देखती थी कि हाँ चलो अब तो आप मिलते ही नहीं हो, आप जाओ, आपका जानो। ऐसा नहीं है। जब कभी भी मौका मिलता था या फिर कभी ज़रूरत पड़ता था तो वो फिर उनका ऑथर को उठाना, तैयार करवाना, सब सब कुछ दादी माँ करती थी एज यूजुअल। बट somehow there was a distance between the two. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This is an important portion. What did author tell uh, to grandmother when she knew about when she wanted to know about his study? What did the author tell her what did the author tell his grandmother when she used to ask about his study? When, मैं फिर से repeat कर रही हूँ, when, what did the author tell his grandmother when she used to uh, ask about his study? Answer will be यहाँ से I would say एक्सेट्रा तक। तो वो जब भी पूछती थी कि क्या क्या स्कूल में पढ़ा है टीचर ने, तब ऑथर ने कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे जो उन्होंने सीखा, कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में, उनके जानकारी के बारे में बोलते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, यू ऑल नो व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी, उनके बारे में बताते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी जिसको कहते हैं, दैट आप सभी जानते हो, स्पेशली दोज आर साइंस स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उनके बारे में बताते थी। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, जो भी हमारे आसपास होता है, सब कुछ के सब जो जो वो पढ़ता था स्कूल में, सब कुछ बताता था, दादी माँ को वो बताता था ऑथर। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब सुन के दादी माँ खुश नहीं हो पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि पुराने जब गांव के स्कूल में वो पढ़ता था तब कुछ पढ़ने में कुछ दिक्कत होता था तो वह हेल्प कर देती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे इंग्लिश लेसन्स और ऐसे साइंस और ये सब उनके समझ के बाहर थे, तो इसीलिए वो थोड़ी सी दुखी हो जाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. और वो यकीन भी नहीं करती थी जो जो हमारे ऑथर के इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था, वो यकीन नहीं करती थी, और उल्टा उनको दादी माँ को ये बहुत ठेस पहुँचता था। डिस्ट्रेस मतलब वो बहुत दुखी हो जाती थी ये बात सोच के कि स्कूल में भगवान या भगवान के पोथी, स्क्रिप्चर्स मैंने बताया था, पोथी जिसको कहते हैं, भगवान की पोथी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कुछ और ही साइंस वगैरह जो उनके समझ के बाहर है वो सब पढ़ाया जाता है। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैं स्कूल से आकर दादी माँ को बताया कि हमारे स्कूल में म्यूज़िक के लेसन्स दिए जा रहे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत बहुत ज़्यादा घबरा गए इस बात से, मतलब अच्छा नहीं लगा उनको ये बात सुनकर। Now why was the grandmother disturbed to know about the music lessons? Why was the grandmother disturbed to know about the music lessons? The answer will be from here. To hear music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. क्योंकि उनका क्या मानना था, गाना बजाना जो है वो बहुत ही
खराब एसोसिएशन मतलब बहुत ही बुरे लोग करते हैं, मतलब जो बुरे संगत में होते हैं वो लोग करते हैं। गाना बजाना ये सब अच्छे खासे इंसानों के लिए नहीं होता है। जेंटल फोक जो है, जो जेंटलमैन है, जो समझदार है, उनके लिए नहीं होता है। ल्यूड एसोसिएशन मतलब जो बुरे संगत में रहते हैं, एसोसिएशन यानी संगत, उनके लिए गाना बजाना है। इट वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिर्फ वही जो कर सकते, दूसरे कोई नहीं कर सकता। मोनोपोली मतलब दूसरे जो कभी नहीं कर सकते, जो सिर्फ वही कर सकते, कुछ कोई एक या दो पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। जैसे कि गिविंग स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स इवेल्युएशन इज़ द मोनोपोली ऑफ फॉर टीचर्स। एक स्टूडेंट क्या करेगा वो कोई दूसरा स्टूडेंट या फिर दूसरे कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक टीचर ही इवेल्युएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कैसा है। सो इट्स सिर्फ वही काम के लिए है, दैट इज़ मोनोपोली। सो इट वॉज द गाना बजाना किसका मोनोपोली है? ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, मतलब जो भीख मांगते, एक तो वो गाना गाते, नहीं तो हार्लॉट्स यानी दोज हु आर public lady, that means those who entertains the ladies who entertains men. I hope you all understand. Harlots मतलब जो ladies men को entertain करते हैं, वो, और नहीं तो भिखारी, ये दो ही गाना गाते हैं। बाकी तो किसी को मतलब गाना तो नहीं, मतलब ये क्या है, गाना कोई अच्छा खासा इंसान नहीं गा सकता। मैंने पहले ही बताया था, शी इज़ वेरी द lady, that means grandmother, was very adjustable lady, but she used to carry some values within herself, और वो उस वैल्यूज़ को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी। तो यही है वैल्यूज़। ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज़ आगे भी आप देखोगे। बट शी सेड नथिंग, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। लेकिन वो इसका कुछ जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, आजकल का ज़माना है, बिकॉज शी वॉज वेरी एडजस्टेबल। मैं बार बार बोल रही हूँ, दीज आर द वर्ड्स यू मस्ट यूज़ इन द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रैंड मदर, which is a very important question. She rarely talked to me after that. लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आया। ये कैसे समझ में आ गया? क्योंकि उसके बाद से, जब से वो गाना सीखने लगा, उसके बाद से ऑथर के साथ ग्रैंड मदर बहुत बहुत कम बातें करने लगी। ओके, सो when I went to university, I was given a room of my own. अब देखो, स्कूल पास हो गया। पहले तो अर्ली चाइल्डहुड, जब वो विलेज स्कूल में, मतलब जब ऑथर विलेज स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो सिटी में आ गए, जब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा। अब टाइम पास्ड बाय, बहुत सालों बीत गया। बहुत साल बीतने के बाद अब now the author was studying at that time in university. When I went to university, अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो why U is capital in university, because this is a particular university. यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें ऑथर पढ़ते थे उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए U is capital. I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब जब कोई बड़ा हो जाता है तो उनको एक पर्सनल रूम मिलता है, स्पेशली जब कोई स्कूल क्रॉस करता है। आप या फिर अभी ऑलरेडी आप लोगों को किसी को पर्सनल रूम मिल चुका है शायद, आई डोंट नो, मैनी ऑफ यू, आई सपोज यू गॉट योर पर्सनल रूम। और स्पेशली जब कोई कॉलेज में जाता है तो फिर, या फिर कॉलेज के छोड़ के यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी का मेंशन है, तो फिर अलग से कमरा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही
ऑथर को भी अलग से कमरा मिल गया, और जो एक कॉमन लिंक था वो एक रूम। अब कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप कौन सा था? क्वेश्चन माइट कम, what was the common link of friendship between grandmother and the author? The room in their city house. The room in their city house was the common link of friendship between the author and the grandmother. Was snapped, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल snapped मतलब बंद हो जाना। My grandmother accepted her seclusion मतलब अकेलापन। तो दादी माँ ने उनका अकेलापन को उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन मतलब, और ऐसा लगा कि वो सब कामों से या फिर फैमिली से रिज़ाइन कर दिया हो। रिज़ाइन मतलब इन्वॉल्वमेंट, अब वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, वो अपने आप में बिज़ी रहती थी, अपने आप में खुश रहती थी। फैमिली के किसी भी इन्वॉल्वमेंट से वो अपने आप को उन्होंने हटा लिया। एक तो उन्होंने अपने आप का जो अकेलापन है वो एक्सेप्ट कर लिया, और सारे कामों में से खुद को हटा लिया। रेजिग्नेशन मतलब हट जाना, और सेक्लूशन मतलब अकेलापन। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. तो वो स्पिनिंग व्हील मतलब जिस पे हम, वो गांधी जी का जो चरखा है जो पुराने ज़माने के लोग घर पे भी जिससे धागे बनाते थे, मतलब जिससे धागे या कपड़ा बनाते थे अपने आप खुद ही, तो दैट इज़ स्पिनिंग व्हील। यहाँ पे स्पिनिंग व्हील मतलब गांधी जी का जो चरखा हम जिसको बोलते हैं। तो वो दिन भर वही चरखा चलाती रहती थी, और only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से शाम तक वो सिर्फ वो चरखे के पास बैठे बैठे चरखा चलाती थी और प्रार्थना गीत जो है वो गाती रहती थी। मतलब भगवान का करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी और चरखा चलाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर को थोड़ी सी वो रिलैक्स करती थी, जब कौन से टाइम में, जब वो स्पैरोज को, वही बर्ड्स को खाना खिलाती थी तब। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो वरांदा में ब्रेड का टुकड़ा, मतलब वही ब्रेड का टुकड़ा लेकर आती थी, छोटे छोटे टुकड़े बना के ब्रेड के, वो जब वरांदा में उनको खिलाने आती थी बर्ड्स को, तो वो सारे लिटिल बर्ड्स कहाँ से पता नहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, और मतलब ऐसे गूंज, मतलब उनका एक साथ जो वो बोलती थी, वो चर्प करती थी, बर्ड के आवाज़ को चर्पिंग्स बोलते थे। तो उनको सुनकर ऐसा लगता था कि वहाँ पे एक पंछियों की आवाज़ की गूंज उठ रही है। वेरिटेबल बेडलाम मतलब अलग अलग पंछियों की आवाज़ की गूंज उठ रही है, जब वहाँ पे सब वो ब्रेड के टुकड़े को देख कर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest hour of the day for her. What used to be the happiest hour of the day for her? This is the answer. What used to be the happiest hour of the day for the grandmother? What used to be the happiest hour of the day for grandmother? This is the answer. तो कोई तो आकर उनके लेग्स पे चोंच मारती थी। पर्च मतलब चोंच मारना, चोंच मारती थी, तो कोई आकर कंधों पे चोंच मारती थी, तो कोई सर पे बैठ जाती थी। लेकिन
इन चिड़ियों पे ग्रैंड मदर कभी भी गुस्सा नहीं आती थी, गुस्सा नहीं करती थी, रादर वो स्माइल करती थी, वो हंसती थी और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। नेवर शूट, शूट मतलब भगाना, नेवर मतलब वो कभी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। और उनके लिए ये आधा घंटा जब वो चिड़िया, इन सारी चिड़िया को खिलाती थी, दिन के सबसे खुशी का टाइम, उनके सबसे खुशी का टाइम यही होता था। यहाँ पे देखो, हमने देखा कि दादी माँ कैसे कैसे अपने आप को फैमिली लाइफ से हटा लिया, सारे इन्वॉल्वमेंट से हटा लिया, और उनके अभी सिर्फ फ्रेंड्स और इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया, वही स्पैरोस। वो दिन भर अपने आप रहती थी और फिर सिर्फ आधा घंटा वो स्पैरोस को खिलाती थी। तो उनके कौन, धीरे धीरे वो, पहले तो उनके फ्रेंड थे, उनका ऑथर, his grandson was the author, and later on the sparrows became her friend. लेकिन she was not emotional, she was not sentimental, she was not at all depressed for that. She was a very, actually she was a very uh, practical lady. She knew that due to age, due to difference in values, she had to uh, resign herself. उनको पता था कि अब दिन बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, उनके वैल्यूज़ के साथ वैल्यूज़ मैच नहीं होगा, तो इन्वॉल्वमेंट से बेटर खुद ब खुद अलग होके रिज़ाइन कर ले और अपने आप में एक दुनिया बसा ले। तो वही ग्लैडली उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली थी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ऑथर जब बाहर जाने लगे, जब बाहर जाने का डिसीजन लिया, मतलब जब दादी माँ से बिल्कुल, मतलब उनके घर से ही दूर जाने का डिसीजन लिया, तब दादी माँ ने कैसे रिएक्ट किया, एंड फर्दर ऑन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।